Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to start another topic of aquaculture. So the topic is carp culture. So there are two fishes which are basically mentioned in your syllabus. So according to your syllabus, one is the carp and another one is the trout. So carp and trout culture we need to cover according to the syllabus, right? And then we have to talk about the integrated fish farming and composite culture. So first of all, I'll be covering the carp culture. Okay. So there will be sub lectures for this topic because it's a big topic, right? So we need to understand about the carps and the common culture system that has been used. So there are different things that needed to be cleared according for this topic, to have a clear understanding. So we are not going to go into thorough reading of everything, but we will get an idea, and I will also tell you at which part you need to strengthen so that you can get a full understanding of the topic. So you need to understand about the common carp species basically, then what are hatcheries, what is the planning, design and construction of the hatcheries, then there is a breeding and seed production of the common carp, how is it is done, then there is hapa breeding of common carp because we are basically interested in the culture system, then there is a nursery fish pond management, management we can leave but we need to know what is nursery fish pond, then there is grow out culture management for carp fishes, then there is water quality parameter which are there to be maintained for culturing the common carp, then there is transportation, finally there is economic seed rearing and disease control, right? So first of all, for culture system we need to understand these terms very very carefully. What are the carp species that has been cultured, and what is hatchery, what is the planning design, that is what we need to do. So first of all, we will be starting with the carps itself. So let me just drag it down. Yeah. So first thing is the carp, the common carp, right? तो aquaculture की अगर हम बात करें तो this is a rapidly growing industry worldwide. There are so many things going on in the aquaculture, and in future the fish supplies from traditional fisheries are unlikely to increase substantially. That means the aquaculture is going to be increasing its production in the coming future, right? And the one of the most widely cultured species is the common carp, right? According to this paper, this is the most widely cultured fish species, right? Common carp is the Cyprinus carpio basically, and this is very native species to the coastal areas of the Caspian and Aral seas. ये बहुत मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कॉमन कार्प बेसिकली. एंड द amazing thing about this species is that it has the ability to withstand various environment and has made it one of the most exotic species to spread throughout the world according to this paper. That means कि ये जो particular species है, this has the ability to withstand different environmental condition, and that is what we need to understand, because for culturing any fish you need to control environmental conditions. But if the fish by default has this capacity to withstand various environmental condition, it is easier to culture that particular fish. सो कॉमन कार्प की अगर हम बात करें तो इट वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम थाईलैंड टू इंडिया इन 1939, and it was solely introduced in India for the purpose of the aquaculture. Okay, so due to its high tolerance to the temperature and turbidity and the prolific pond breeding habit, that means जो इसका number है reproduction में, the production of the eggs and sperm, that is very very high, right? तो high prolific value is there, breeding habits इसका बहुत अच्छा है, and it was established in the India soon after it was introduced. So this species has been commonly used in aquaculture, and it is very well known in aquaculture. And the common carp is the third most widely cultivated and commercially important freshwater fish species. That is very very important. And in 2010 it ranked third basically in term of the worldwide finfish aquaculture production. So basically you get an idea that carp is a very very important member of the aquaculture, and it has been cultured for so many years, and India made has been introduced from Thailand, and now it is one of the most commercially important and widely cultivated freshwater fish in the whole world, right? So this is about the carp itself. And if we talk about the common carp, this is highly fecund freshwater fish. This is very very important.
Fecundity is very very important. That means the number of gamete or the upcoming offspring it forms, that is high, right? So this is important for एक्वाकल्चर, बिकॉज जितने ज़्यादा आप कह लीजिए मीट होगा, जितनी ज़्यादा स्पॉनिंग होगी, दैट इज़ उतना ज़्यादा वो फिश जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एक्वाकल्चर के लिए. एंड जो कॉमन कार्प है विच इज़ बेसिकली द सिप्रिनस कार्पियो, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली ट्रांसप्लांटेड स्पीसीज ऑफ फिश इन द वर्ल्ड. दैट मीन्स हेयर टू देयर इट हैज़ बिन मूव्ड सो फार, right? And this is favored for cultivation in the ponds in the Asia near and far east also, है ना. The thing is it has been cultured alone as well as it has been cultured in combination with other fish. This is another topic of your syllabus, that is the integrated or composite fish culture, ठीक है, integrated और देर इज़ अनदर वन दैट इज़ द कंपोजिट. तो इन दोनों के बारे में भी हम कमिंग लेक्चर्स में विल बी टॉकिंग अबाउट, राइट? सो दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वाकल्चर दैट वी गेट टू नो फ्रॉम हेयर. Now if we talk a little bit about the carp, it belongs to the order Cypriniformes and the family is Cyprinidae, that is important, and it is considered the larger basically largest family of the freshwater fish, right? And the general habitat is freshwater environment, especially you can find this fish very easily in ponds and lake and rivers, and also it rarely inhabits the brackish water, that means the mixed water which is saline as well as the fresh water, the mixture of that water. एस्चुरीज के पास जो आपको मिलता है वहाँ पे बहुत रेयरली आपको ये फिश देखने को मिलेगी. एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द कंट्रीज बिकॉज इट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हेयर टू देयर, राइट? नाउ this is the picture of Cyprinus carpio, so you can see very clearly this is the fish. Now if you see the taxonomic profiling of this fish, basically the classification, so kingdom is Animalia, you will find it under the subkingdom Bilateria. What is Bilateria you should know because we have done classification already. Then there is infra kingdom which is Deuterostomia, ये भी हमने पहले बात करी है. What is it? Phylum is Chordata, subphylum is Vertebrata, and the infraphylum is Gnathostomata, right? That means it has jaw. Then superclass is Ostrithes. This is the bone, basically the bony fishes, because they have the endoskeleton which is made up of bone. Then class is Actinoturgi, subclass is the Neoturgi, infraclass is the Teleostae, and then the superorder is there. Then there is the order, superfamily, family, genus, and finally the species. So this is the classification which you need to remember. Please memorize it because this is important, because आपके syllabus में as such carp is mentioned, so anything from the classification can be asked, right? And the common name is the common carp, right? And there are some variety of common carp which are called the mirror carp, leather carp, koi, and Israel carp. So there are other varieties also there, right? Scientific name is Cyprinus carpio, that is very very understandable to you. Now in tropical condition, if you see this fish basically attains sexual maturity within 1 year. So if there is warm environment, warm temperature, high temperature basically, so it will attain the sexual maturity within 1 year, right? And it spawns throughout the year, that is important. कल्चर के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि फिश की स्पॉनिंग किस तरह से हो रही है. तो थ्रू आउट द ईयर इट कैन रिलीज इट गमीट्स इन द पॉन्ड एनवायरनमेंट विद 2 पीरियड, वन फ्रॉम द जनवरी टू मार्च. तो पहला क्या है, जनवरी से मार्च के बीच में इट विल स्पॉन. देन यू कैन basically get the gametes, and other is between the July to August. Spawning जो है it occurs in the shallow marginal weed infested areas, जहाँ पे थोड़ा बहुत weed हो वहाँ पे इसकी spawning होती है. And the 3 varieties of the common carp, the scale carp, mirror carp, and the leather carp are mostly confined to the cold upland waters. तो ऐसा नहीं है कि सारी carp जो है आपको वो tropical condition में ही मिलेगी. कई जो varieties हैं they are present on the cold upland waters also, right? So they do not generally breed in the plains. So there are varieties which are present in other environment also. And for successful induced breeding, it is necessary to select a ripe brood fish, that means which has the mature egg. And the scale carp is a bottom dweller अगर आप scale carp की बात करें, and retrivorous fish. तो you need to know when the fish is basically ready to collect the gametes basically, right? You need to collect the egg or the sperm depending on the gender of the fish, and then जो induced breeding है वो उस पर डिपेंड करती है. You need to know the timing कि कब वो spawn करने वाला है, ठीक है.
Now, secondly, if we talk about the hatchery planning and construction, because we are basically interested in the culture system, so the most important thing for fish culture, the prerequisite of the for the development of fish culture is the establishment of the dependable fish seed resource. सबसे पहले you need to have the resource. कहाँ से लाओगे आप सीड जिससे बेसिकली आप कल्चर स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है ना. सो कॉमनली कल्टिवेटेड स्पीशीज़ का जो आपको सीड है पहले वहाँ कहाँ से मिलेगा, द सोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एस्टैब्लिश सोर्स होना चाहिए जहाँ से वो मिलेगा. एंड द हैचरी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द मॉडर्न फिश फार्म. तो हैचरी ही वो सोर्स है जहाँ से आपको जो है सीड मिलने वाला है, ठीक है. So the development of induced breeding basically is as a technique for commercial production of carp seed. It is very logical, right? Because you need the seed, ठीक है. और वहाँ पे भी आप अगर आप इंड्यूस ब्रीडिंग करवा सकते हैं एज पर द प्रीवियस लेक्चर, यू शुड नो बाय नाउ. इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के केस में आप क्या करते हो, आप जो है बहुत अच्छी वेराइटीज़ के जो सीड्स हैं, सीड्स यहाँ पे मैं गेमीट्स को कह रही हूँ, ठीक है. तो अच्छी वेराइटी के जो गेमीट्स हैं उनको आपस में फ्यूज़ करवा के यू कैन गेट अ गुड यू नो, या फिर आप कह लीजिए पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो ऑफस्प्रिंग है वो ज़्यादा बेटर होगा. क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वाइज आपको अच्छा मिल सकता है, राइट. तो you need to have this thing, the induced breeding technique should be there in the hatchery. The skill need to be established. और जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन है हैचरी सिस्टम का, इट रिक्वायर टेक्निकल स्किल्स ऑफ कोर्स, एंड वेरी गुड स्किल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, बिकॉज ओवरऑल जो फिश का सर्वाइवल है वो वाटर क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है. तो समझ आ रहा है हैचरी जो आपको क्यों चाहिए, बिकॉज आपको चाहिए सबसे पहले सीड जिससे आप स्टार्ट करोगे कल्चर. दूसरा, इस हैचरी में इंड्यूस ब्रीडिंग होनी चाहिए. तीसरा, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए. वाटर फिल्ट्रेशन लगी होनी चाहिए. डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है दैट इज़ नीड टू बी देयर. एक गुड डिज़ाइन जो है वो आपकी हैचरी का होना चाहिए ताकि एक हेल्दी जो आपका इन्वायरमेंट है वो बने, वहाँ से आप हेल्दी वायबल सीड जो है वो अटेन कर पाओ. तो हैचरी जो है इट कंसिस्ट ऑफ द वाटर क्वालिटी सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन देर इज़ अ ब्रीडिंग सेक्शन. तो जब भी आप हैचरी को एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज हैव, इट हैज़ अ वाटर क्वालिटी सेक्शन, देन इट हैज़ अ ब्रीडिंग सेक्शन, देन देर इज़ अ लार्वल रेयरिंग सेक्शन. लार्वा को कलेक्ट करते हैं, दिस इज बेसिकली योर सीड, राइट. सो देयर शुड बी गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज थ्री सेक्शन, राइट. वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ब्रीडिंग सेक्शन अच्छे से मेंटेन होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन मेंटेन हो, और लार्वल रेयरिंग सेक्शन भी अच्छे से होना चाहिए जहाँ से आपने बेसिकली सीड कलेक्ट करना है. तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है किसी भी हैचरी की इज़ टू असर्टन द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फिश एग, and then to provide them with the most satisfactory incubation condition, and that will increase the hatchery rate. So basically you need to maintain parameters इन योर हैचरी. इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है कि आपको टेम्परेचर जो है, पीएच जो है, वाटर क्वालिटी जो है, इसको मेंटेन रखना है, प्रॉपर रखना है. और उससे क्या होगा, बाय मेंटेनिंग ऑल दिस थिंग्स यू विल बी एबल टू यू नो मेंटेन द एनवायरनमेंट. सो द फिश जो है, फिश एग जो है, दे विल डेवलप, जैसे वो एम्ब्रॉनिक जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए. एंड देन यू विल प्रोवाइड देम विद द सेटिस्फैक्ट्री इंक्यूबेशन पीरियड, ताकि वो जो एग हैं उस वो हैच फर्टिलाइज्ड एग होंगे, फिर वो हैच करेंगे और वहाँ से यू विल हैव योर फ्राई और द स्मॉल फिश, बेसिकली जो आपका सीड है जिसको आप वहाँ से जो है रेयर करोगे, ठीक है. तो हैचरी सिस्टम जो है दैट नीड्स टू बी वेरी वेल मेंटेन्ड, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. सो अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो नेचुरल फिश सीड प्रोडक्शन तो होती होती है, उसके अलावा जो ब्रीडिंग फिश है पॉन्ड्स में, तो देर इज़ वहाँ पे जो है हैचरी सिस्टम जो है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है. तो हापा एंड हैचिंग ऑफ द एग इन द अर्दन पॉट हैचरी, ये एक आप कह लीजिए बहुत हिस्टोरिकल सिस्टम है. तो एक अर्दन पॉट में हैचरी बनाई जाती थी, टब हैचरी होती थी, ठीक है. तो अलग अलग टाइप थे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिकली द टाइप एट द सेम टाइम जो अलग अलग बने थे. तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो देर इज़ चाइनीज़ इको हैचरी जो काफ़ी प्रेवलेंटली यूज़ भी होती हैं, ठीक है. तो इसमें जो है पहले तो उनका नाम ये क्यों है, बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिक एंड मेंटेन ऑप्टिमम इकोलॉजिकल पैरामीटर्स ड्यूरिंग द फिश ब्रीडिंग एंड द हैचिंग, ठीक है. चाइनीज़ इको हैचरी इनको कहते हैं. और एक छोटे से स्पेस में दिस सिस्टम बेसिकली सिमुलेट सम एस्पेक्ट ऑफ द रिवराइन एनवायरनमेंट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिवर इज़ फ्लोइंग ना. तो इस हैचरी में भी क्या रहता है, जो वाटर का फ्लो है वो वैसे ही मेंटेन रहता है, सो दैट इट कैन मेंटेन द एनवायरनमेंट कंडीशन ऑफ द रिवर, राइट.
तो वो वहाँ पे रहता है मेंटेन। तो इट इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मेथड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडियन मेजन कार्प में जहाँ पे भी आप देखेंगे जो एक्वाकल्चर साइट्स होती हैं या फिश फार्म्स होते हैं, तो वहाँ पे चाइनीज़ जो इको हैचरी है वो बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इवन माइनर कार्प जहाँ कल्चर होता है, को एक्जॉटिक कार्प कल्चर में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नाउ व्हाट आर द टूल्स एंड इक्विपमेंट इन अ हैचरी। तो जहाँ पे भी ये हैचरी आप देखेंगे, यहाँ पे देर इज़ बेसिकली a place where there is artificial fertilization of egg is taking place, ठीक है। तो हैचरी वही जगह है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करवा रहे हैं। एग और स्पर्म को आर्टिफिशियली बेसिकली एग पहले आप कलेक्ट कर रहे हैं, स्पर्म कलेक्ट कर रहे हैं फिश में से, और फिर उसको क्या कर रहे हैं आप आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवा रहे हैं एग को, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स आपको वर्किंग स्टेशन पे चाहिए होंगे। जैसे सबसे पहले देयर नीड्स टू बी अ लार्ज स्टोरेज टैंक विद अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर, which are basically used for the hormone treatment of the breeders. And now this you should know, क्योंकि हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में एक्वाकल्चर के बारे में पढ़ा ही है। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम क्या करते हैं, जो फिशेज़ हैं उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं सो दैट दे प्रोड्यूस एग जब हमें ज़रूरत है, या फिर दे प्रोड्यूस मोर एग, राइट। क्योंकि सारा जो ये प्रोडक्शन है वो गोनाडोट्रोफिन्स पे ही बेस्ड है। गोनाडोट्रोफिन्स विच आर बेसिकली द पिट्यूटरी हार्मोन्स, तो उनको रिलीज़ करवाते हैं ये। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, नॉट एक्चुअली गोनाडोट्रोफिन बट रिलीजिंग हार्मोन्स, राइट। तो आपको एक लार्ज स्टोरेज टैंक चाहिए जहाँ पे अच्छा वाटर सप्लाई हो, एंड दे आर यूज फॉर द हार्मोन ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रीडर्स। तो ये क्या है, ये हैं पेरेंट्स जिनसे आप बेसिकली एग और स्पर्म लेने वाले हो। देन फिश आर इजीली ट्रांसपोर्टेड इन अ फाइबर ग्लास टैंक ऑन द व्हील्स। देन देर इज मैनी प्लास्टिक कंटेनर्स ऑफ द वेरियस साइज विच आर नेसेसरी टू हैंडल एंड ट्रीट द स्ट्रिप्ड एंड द फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। तो फर्टिलाइज एग्स को कंटेन करने के लिए यू नीड लाइक कंटेनर्स, जैसे 3 to 4 लीटर के बाउल्स होते हैं, हो सकता है 15 लीटर तक का बाउल भी हो अगर स्वेलिंग एग जो है वो आप ले रहे हो। तो अलग अलग साइज़ के कंटेनर्स यू रिक्वायर बेसिकली, राइट। देन एक स्मॉल रूम होता है जहाँ पे कुछ इक्विपमेंट है, जैसे कि देर इज़ क्लीनिंग टैल, देर इज़ मेजरिंग जग, देर इज़ प्लास्टिक ट्यूबिंग, नीडल, थ्रेड, सिरिंज, एंड दे आर द स्टोर टुगेदर फॉर द केमिकल्स एंड द स्टॉक ऑफ द ड्राइड हाइपोफिसिस। तो बेसिकली ये जो हार्मोनल थेरेपी है उसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली वो हार्मोन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये नर्सरी पॉन्ड है ना, इस तरह से कुछ ये अगर आप देखेंगे एयर शॉट तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो बेसिकली यू हैव द नर्सरी पॉन्ड, यू हैव द हैचरी यूनिट। ये हैचरी वो है बेसिकली जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवानी है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो वाला जो पोर्शन है ना, दैट इज़ हैचरी, ठीक है। देन देर इज पैकिंग रूम, देर इज वेल। तो दिस इज द सिस्टम। सो देर आर डिफरेंट पॉन्ड्स इफ यू कैन सी ओवर देयर, राइट। एंड ये जो एरोज हैं ये आपको फ्लोइंग वाटर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव डिफरेंट सिस्टम विच आर कनेक्टेड। तो एक फिश फार्म में बहुत सारे पॉन्ड्स रहते हैं जहाँ पे नो डाउट आप यू कैन सी वेरियस फिशेस, लेकिन जो ये सिस्टम है ये वाला, दिस ग्रीन बॉक्स, अंडर दिस ग्रीन बॉक्स, सो इट हैज़ द नर्सरी पॉन्ड, इट हैज़ अ हैचरी यूनिट, इट हैज़ अ पैकिंग रूम। तो ये वेल है। तो यहाँ पे जो हैचरी यूनिट है यहाँ पे होती है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से आपका जो स्टॉक है बेसिकली वो तैयार होगा, ठीक है। अब जो हैचरी के लिए जो साइट सिलेक्शन है, दैट शुड बी लोकेटेड बाय द साइड ऑफ अ सोर्स ऑफ गुड क्वालिटी वाटर, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आपको पानी तो चाहिए फिश को बेसिकली सर्वाइव करवाने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे ये भी है कि कोई डिफ़िकल्टी ना हो रन ऑफ की, सरफेस रन ऑफ, या जैसे आप कह लीजिए आसपास कोई ऐसा मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट ना हो, कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ से कुछ भी कंटामिनेंट्स वहाँ पे आ सके उस वाटर में, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो वाटर है वो हमेशा वहाँ पे होना चाहिए, दैट मीन्स यू नीड टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट वाटर टू फिल द पॉन्ड्स जहाँ पे भी आप फिश को रेयर कर रहे हैं। So these things need to be taken care of, right. Water source is very very important for the selection of the location for the hatchery. Then you have the topography of the area which is basically proposed for the construction of the hatchery complex. So generally it needs to be flat, ज़्यादा sloping ना हो towards the बेसिकली एक थोड़ी सी स्लोपिंग हो सकती है पर ज़्यादा ना हो। जैसे अगर आप ये हैच सिस्टम था तो जो वाटर है वहाँ से जो आउटवर्ड या आउटलेट है उस तरफ थोड़ी बहुत स्लोपिंग वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। साइड जो है वो ईजिली अप्रोचेबल होनी चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट जब करोगे फिश सीड को तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑल्सो, राइट। बिकॉज यहाँ से जो है आपको
फ़िश फार्म्स में जो जहाँ पे भी आप कह लीजिए ब्रीडिंग फ़िश फार्म अलग होते हैं, और कुछ फार्म ऐसे होते हैं जहाँ पे जो स्टॉक है वो बनाया जाता है बेसिकली जो सेल करने के लिए फ़िशेज़ वो वहाँ पे रेयर करेंगे। तो वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, और लेबर जो है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो these are some things which you need to take in mind. Now what are the components of a eco hatchery? तो एक तो हम चाइनीज़ हैचरी की बात करें, यहाँ पे एक सर्कुलर इको हैचरी की बात करें विच इज़ द मोस्ट कॉमन हैचरी सिस्टम अडॉप्टेड इन द स्टेट्स, राइट। तो अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो सर्कुलर टैंक्स बेसिकली होते हैं जो आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, इसमें इस तरह से होता है। तो देर इज़ अ ओवरहेड टैंक, देन देर इज़ अ ब्रीडिंग और स्पॉनिंग टैंक, यहाँ पे जो है बेसिकली कलेक्शन की जाती है, एग कलेक्शन चैम्बर होता है उसमें, फिर देर इज़ अ इंक्यूबेशन और हैचिंग टैंक है, देन देर इज़ अ स्पॉन कलेक्शन टैंक, एंड देन अगेन ये बेसिकली सारे टैंक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड टैंक सिर्फ वाटर सप्लाई के लिए होता है। आई होप दिस देर इज़ अ पिक्चर ऑफ इट, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज शोइंग यू द ओवरहेड टैंक, ठीक है। तो ये ऊपर टैंक है और नीचे ये सर्कुलर सा दिखाई दे रहा है ना आपको, तो बेसिकली यहाँ से वाटर सप्लाई है इसको, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जो है आपके पास क्या होगा, स्पॉनिंग पूल है जहाँ पे ब्रूड स्पॉन करेंगे आपके जो भी ये वाले जो स्पॉनिंग पूल रहेगा यहाँ पे बेसिकली के मीट रिलीज़ करेंगे फिशेज़ आके आपके, ठीक है। जैसे ये इसमें दिखा रखा है, दिस इज़ द ब्रीडिंग पूल, ठीक है जी। ये इसको क्लीन करने के लिए या कुछ कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे, फिर देर इज़ इंक्यूबेशन पुल जहाँ पे आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन एग को इंक्यूबेट किया जाएगा ताकि उसमें से हैच होके जो फ्राई है वो निकले, ठीक है। तो ये आपको जो है वो इंक्यूबेशन पूल दिखाया जा रहा है। देन देर इज़ वाटर सर्कुलेशन इन द पूल्स, दैट मीन्स जो वाटर है वो यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है, ये आपको दिख रहा है, ये जो पावर्ड है यहाँ से वाटर जो है मूव करेगा, ठीक है। देन देर इज स्पॉन कलेक्शन टैंक, सो दिस इज शोइंग यू द स्पॉन कलेक्शन, ये आपको आउटलेट्स दिखाई दे रही हैं, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं बेसिकली, ठीक है। फाइनली स्पॉन कलेक्शन जो है यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये तो आपको वैसे मेजरमेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से, क्योंकि आपने डेवलप नहीं करनी, यू जस्ट नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि होती कैसी है। तो सर्कुलर हैचरी की कुछ इस तरह की डायमीटर्स रहते हैं, और अगर रेक्टेंगुलर तो ऐसे भी हो सकता है कि रेक्टेंगल के शेप में हो वो सारे पॉन्ड्स, और ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल शेप में, दोनों तरह के पॉसिबिलिटी है, ठीक है। So this is about the hatchery. I hope the things are clear about the hatchery. Now moving on to the breeding and the seed production of the common carp. तो अगर हम बात करें कॉमन कार्प की, तो दिस हैज़ बिन वाइडली नोन दैट कि जो जितना भी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको यूज़ किया जाता है कॉमन कार्प के कल्चर में। दैट मीन्स कि आप ये देखेंगे कि फ़िश फार्मर जो है उसको कॉमन कार्प का आप कह लीजिए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे प्रोपगेशन होता है। आर्टिफिशियल जो प्रोपगेशन है उसका मतलब क्या है, यू आर यूजिंग बेसिकली दी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि आप जो है सीमन जो है उसको एग्स में डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं इसको अडॉप्ट किया है बहुत सारे फिश फार्मर्स ने, राइट। इंड्यूस ब्रीडिंग के अंडर ही आता है। तो बेसिकली फ़िश जो है यू मेक द फिश टू रिलीज एग, एंड देन जो आर्टिफिशियली जो है इसमें आप इंड्यूसिंग एजेंट्स डालते हैं, दे विल नॉट डू सो नेचुरली। दैट मीन्स कि अगर फ़िश से एग रिलीज़ करवाने हैं एट द टाइम व्हेन यू वांट, तो आपको कुछ ना कुछ इंड्यूसर उस फिश में डालना पड़ेगा, तब वो एग को रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो इसको इंड्यूस ब्रीडिंग के अंडर लिया जाता है। पॉन्ड कंडीशन जो है बेसिकली उसको भी यूज़ किया जाएगा। तो नेचुरल स्पॉनिंग जो है वो तो हो ही रही है, उसके अलावा यू कैन इंड्यूस इट, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक्सेप्ट द कॉमन कार्प, ऑल 3 इंडियन और 2 चाइनीज़ मेजर कार्प जो आपकी कैटला, रोम, रिगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प हैं, दे आर कल्टिवेटेड अंडर द कंपोजिट फिश कल्चर एंड दे डू नॉट ब्रीड इन द पॉन्ड कंडीशन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कॉमन कार्प को हटा दें तो जो आपकी इंडियन कार्प है, चाइनीज़ मेजर कार्प है, ये ग्रास कार्प है, इनकी अगर हम बात करें तो दे बेसिकली डू नॉट ब्रीड इन द पॉन्ड कंडीशन, ऑल्दो दे अटेन फुल गोनाडल मेच्योरिटी, दैट मीन्स गोनाड्स उनके पूरे मेच्योर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, वो उस वाले कंपोजिट कल्चर में वो कल्टिवेट हो सकते हैं, बट दे डू नॉट ब्रीड, दैट मीन्स वो स्पॉन ही नहीं करेंगे। So that therefore the carps needs to be having the artificial enclosure जहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन, जिनको आप हाइपोफिजियल हार्मोन कह रहे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ऑफ अ डोनर फिश एंड दे आर इंजेक्टेड इनटू द सेक्सुअली मेच्योर्ड फिश अंडर द फेवरेबल वाटर एंड क्लाइमेट कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो
क्योंकि वो नेचुरली तो नहीं करने वाली है वहाँ पे स्पॉनिंग। तो आप क्या करेंगे, हार्मोन को एक्सट्रैक्ट करेंगे एक डोनर फिश से, उसको इंजेक्ट करेंगे इस फेवरेबल कंडीशन में, एंड इस प्रोसेस को आप आर्टिफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं पिट्यूटरी हार्मोन का इनटू द मेच्योर फिश बेसिकली। दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड हाइपोफाइसेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म नाउ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन कार्प कल्चर हाइपोफाइसेशन इज़ वेरी वेरी कॉमन, राइट। सो इंडिया में भी ये तो काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था, 1957 में अगर हम बात करें इंड्यूस स्पॉनिंग करवाई गई थी, ठीक है। तो अभी तो बहुत कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है, राइट ना। अब जो फिश मेच्योरिटी की बात अगर करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस द मेच्योरिटी ऑफ द फिश। तो देर इज़ टेम्परेचर, देर इज़ फोटो पीरियड कि कितने टाइम के लिए लाइट अवेलेबल है, देर इज़ वाटर क्वालिटी, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फूड अवेलेबिलिटी है, बैलेंस्ड फूड अगर आप दे रहे हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस एसोसिएटेड रहता है। जैसे अगर आप बात करें, अगर आप एनवायरनमेंट पैरामीटर को फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं तो उसका भी फिश पे बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो अडेप्ट जो है बार बार उसको करना पड़ेगा। देन अगर आप फिकेंडिटी की बात करें, फिकेंडिटी का मतलब होता है कि ओवा जो भी एग जो प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जो गिमीट है फीमेल का, ठीक है, तो द नंबर ऑफ द मेच्योर गिमीट इन द फीमेल ओवरी प्रायर टू द स्पॉनिंग पीरियड, तो वो जो है रेट है फिकेंडिटी का, दैट विल बेसिकली यू प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन कि कितना आपको प्रोडक्शन उस फिश से मिलने वाला है। दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। फाइनली हैचरी जो हमने पीछे पढ़ा था, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जहाँ पे गुड क्वालिटी वाटर की होगी प्रोपगेशन सीजन के टाइम पे, तभी आप अच्छा कर पाओगे, राइट। हैचरी में क्योंकि बेसिकली यही तो वो जगह है जहाँ पे आपने क्या करना है, स्पॉन करवाना है, और फिर वहाँ पे आर्टिफिशियली आप जो है फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, एंड देन फाइनली यू विल हैव योर फ्राइज, जिसको आप बाद में क्या करेंगे, रेयर करेंगे, और यू विल हैव द फिश, राइट। तो दिस इज़ दी बेसिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट्स व्हेन यू कल्चर दी कार्प, राइट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनली देर इज़ समथिंग कॉल्ड द ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट। अब ये वो है जो ब्रीडर्स हैं आपके, इनको भी तो मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल केयर फॉर द ब्रूडर्स फ्रॉम द टाइम फिश वॉज कैप्चर्ड एंड ब्रॉट बाय ब्रीडिंग एट द टाइम ऑफ द स्पॉनिंग। इसका क्या मतलब है, पहले आपने फ़िश को पकड़ा होगा जिसको आप ब्रीडर बना रहे हो ना, अडल्ट फिश, और फिर उसके बाद उसको ब्रीडिंग फार्म में लेके आए, टाइम स्पॉनिंग का टाइम जो उसका है वो देखा, उससे स्ट्रिपिंग का मतलब होता है गेमीट को बेसिकली रिलीज़ करवाना, एंड देन यू विल रिटर्न इट, राइट। तो ब्रूडर जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं, फ़िश फार्म में वो वाइल्ड, वैसे वाइल्ड से भी ले सकते हैं, फ़िश पॉन्ड से भी प्रोक्योर कर सकते हैं, और जो वाइल्ड जो ब्रूड फिश होती हैं वो ईजिली कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके फिशरमैन होते हैं वो इसको कैप्चर कर सकते हैं आराम से, ठीक है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो दिस इज़ द थिंग। नाउ इनको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहले उनको लाया जाएगा फार्म में, वहाँ से इनसे क्या किया जाएगा, बेसिकली स्ट्रिपिंग की जाएगी, एंड देन दे विल बी रिटर्न बैक टू द एरिया, या फिर आप बाद में इसको, कईयों को तो वापस वाइल्ड में ही ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और कई बार क्या किया जाता है कि इनको आप सेल भी कर सकते हैं। बट मोस्टली जो है ये जो ब्रूडर्स हैं, दे बेसिकली रिलीज्ड बैक इनटू द वाइल्ड केयरफुली दोबारा, क्योंकि इनका टाइम आएगा स्पॉन करने का, तब आप इनको दोबारा पकड़ सकते हैं, ठीक है। और ब्रूडर के केस में एक और चीज़, अगर आप वाइल्डली उनको पकड़ते हैं तो यू विल डू वन मोर थिंग, दीज विल बी डिसइंफेक्टेड एंड पैरासाइट रिमूवल विल बी डन विद दिस थिंग, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बात करवा के या फंजीसाइड दे के, बिकॉज दीज जो वाइल्ड में मिलेंगे इनके पास बहुत सारा इन्फेक्शन ऑलरेडी हो सकता है, और बिकॉज यू आर कल्चरिंग द फिश फॉर द पर्पस ऑफ द फूड, है ना। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का पैरासाइट, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले ही ये चीज़ें जो हैं ये क्लियर करनी होती हैं कि अगर आप कहीं से भी ब्रीडर्स ले रहे हो तो उनको आपको डिसइंफेक्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और डेली बेसिस पे इनको चेक भी किया जाता है। नाउ अगर आप वाइल्ड से लेते हो तो अलग तरह की टेम्परेचर या वाटर वॉल्यूम या सैलिनिटी अलग रिक्वायरमेंट रहेंगी, वहीं पे अगर आप पॉन्ड से लोगे तो अलग रिक्वायरमेंट रहती हैं ब्रूडर्स की, ठीक है। अगर आप ब्रीडर्स को लेके आते हो उसके बाद आपका काम है उनसे स्पॉन करवाना, इंड्यूस करवाना स्पॉनिंग, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे ब्रीडर जो है दे टेक बेसिकली प्लेस बोथ इन द क्लियर एंड टर्बिड वाटर, तो ब्रीडिंग कहीं पे भी हो सकती है, टर्बिड वाटर में भी हो सकती है, क्लियर वाटर में भी हो सकती है। एक्यूमुलेटेड जो फ्रेश रेन वाटर है वो प्रमोट करती है सक्सेसफुल स्पॉनिंग को। दैट मीन्स कि अगर आफ्टर रेनिंग के बाद जो वाटर एक्यूमुलेट हुआ है वहाँ पे जो वाटर है वहाँ पे इजीली स्पॉनिंग हो सकती है, तो दैट यू नीड टू कलेक्ट, है ना। तभी ये ओपन होते हैं, जितने भी आप फिश फार्म देखोगे इसमें जो टैंक्स हैं वो ओपन रहते हैं, उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता वहीं, ताकि जो रेन वाटर है उसको एक्यूमुलेट किया जाए,
ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस बता रखे हैं इंड्यूस स्पॉनिंग के लिए। कूल रेनी डेज जो हैं वो ज़्यादा कंडक्टिव हैं, उसमें अच्छे से स्पॉनिंग होगी। अगर फ्लोइंग रिवर वाटर है तो और बेटर है, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है मिमिक कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ब्रूडर का जो कलेक्शन है वो दिखाइए, इन्होंने जाल डाला हुआ है, तो ये सेग्रीगेट कर रहे हैं मेल को फीमेल से, अलग अलग उसमें डालेंगे, ठीक है। मेल और फीमेल का सेग्रीगेशन होगा। तो आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, मेच्योर जो आपका आप देखोगे तो एब्डोमेन जो है वो दोनों का डिफरेंट होता है। ये आप कॉमन प्रैक्टिस में भी देख सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, आपको पता चल जाएगा कि जो एब्डोमेन है दैट इज़ नॉट बल्जिंग इन केस ऑफ मेल, बट ये काप की बात हो रही है स्पेशली। अगर आप फीमेल की बात करोगे तो एब्डोमेन थोड़ा सॉफ्ट रहता है और बल्जिंग होता है, ठीक है। और जो है, जो व्हेन एब्डोमेन नियर द वेंट रीजन इज प्रेजेंट स्लाइटली एंड मिल्क ऊज इज आउट ईजिली, तो अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो वहाँ से मिल्क ऊज करेगा, तो आपको दिखाई देगा वो। लेकिन यहाँ पे फीमेल के केस में तो वेंट्रली अगर आप अपवर्ड कंडीशन में रखोगे, बेली ऑन द बोथ साइड्स आर स्वोलन, क्योंकि यहाँ पे ओवरी की वजह से अगर आपने उल्टा रखा ना, मतलब ऐसे फिश को, तो यहाँ पे आपको स्वोलन नज़र आएगा वहाँ पे। और अगर आप प्रेस करोगे तो वहाँ से एग रिलीज होगा, और ऐसे करके एग निकाला भी जाता है, ठीक है। और दूसरा आता है पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन जो है वो इनसाइड ऑफ द पेक्टोरल फिन, बेसिकली आप वहाँ से देख के भी उसको बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फीमेल के केस में जो पेक्टोरल फिन है वो स्मूथ रहता है टच करने में, तो वहाँ से पता लग जाता है कि ये मेल या फीमेल है। लेकिन मेल के केस में वो कैसा रहता है, रफ रहता है, ठीक है। फिर वेंट होता है विच इज़ बेसिकली पिंकिश इन केस ऑफ द फीमेल, ठीक है। और इसमें वो पिंकिश नहीं होगा। बस कुछ ये डिफरेंसेस हैं जो कैरेक्टरिस्टिक आप मॉर्फोलॉजिकली देख के भी बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। इन दोनों को सेग्रीगेट किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में बताया है कि कैरेक्टर्स क्या रहते हैं। तो कॉमन कार्प जो है वो बॉटम फीडर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बारे में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो देखो 1 साल के डिफरेंस में यहाँ पे कितना केजीज इंक्रीज़ हो गया काप का। मेच्योरिटी की बात की करें तो सेकेंड ईयर के एंड में काप जो है वो मेच्योर हो जाती है। फेकंडिटी की बात करें, वो गेमीट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हैं पर ग्राम ऑफ ओवरी वेट जो है इतने ज़्यादा इनको गेमीट मिलेंगे। स्पॉनिंग सीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया, जनवरी टू मार्च है, जून टू अगस्त है, ठीक है। अर्ली डेवलपमेंट का पीरियड कैसा रहता है, तो यहाँ पे पहले जाइगोट बनेगा, देन यू हैव द क्लीवेज, देन देर इज ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, सेगमेंटेशन एंड लार्वा। यही है सारा जो हमें ब्रीडिंग में करना होता है, ठीक है। तो टाइम भी यहाँ पे दे रखा है, 13 आवर्स में यू विल हैव द लार्वा, तो हैचिंग तब हो जाती है, ठीक है जी। So you can see very clearly over here, these are the stages of embryonic development, time और characters। पर यहाँ पे क्योंकि आप तो कल्चरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको embryonic development देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एग्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है जी। यू कैन सी देम वेरी क्लियरली, शाइनी से हैं और फ्राइज ऐसे हैं। ये तो बड़े कॉमन ही, आपने अगर आपके घर पे वो भी है, एक्वेरियम भी है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो दीज आर इंड्यूस ब्रीडिंग में सिंथेटिक हार्मोन्स का यूज़ होता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। जो कॉमनली सिंथेटिक हार्मोन्स यूज़ होते हैं दैट इज़ द ओवा प्राइम, देर इज़ ओवा पैल, देर इज़ ओवाटिड, ठीक है। और इनके यही है कि आप सिंगल डोज अगर एडमिनिस्टर करोगे तो उससे इंजेक्ट कर सकते हो आप साइमल्टेनियसली मेल और फीमेल। ये एडवांटेज हैं कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स की। ये एक्यूरेसी जो है वो डोज की, और वो ऑलरेडी डन है क्योंकि टेस्टेड हैं और आपने इनको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। टाइम सेविंग प्रोसीजर है, इजीली इंजेक्ट कर सकते हो, और ये एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन में भी इफेक्टिव हैं, तब भी स्पॉनिंग हो जाएगी, है ना। इनको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो। सो देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस। और हार्मोन जो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर हम ब्रूडर्स की बात करें तो यू आर स्टिमुलेटिंग द ब्रूडर्स बाय इंजेक्टिंग द ओवाटिड। मान लीजिए ये आप यूज़ कर रहे हो फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग, तो इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यू हैव द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, दैट इज़ दिस क्वांटिटी 20 mg basically, then there is doparidone BP, that is 10 mg, then benzyl alcohol IP which is 1.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो है आपकी कॉम्पोजिशन है। तो हार्मोन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, हार्मोन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंट्रापेरिटोनियल वे, ठीक है ना। पेरिटोनियम में बेसिकली लगाया जाता है इंजेक्शन, तो एट द बेस ऑफ द पेक्टोरल फिन यू विल इंजेक्टेड। सो ये आपको ओवरटेड दिखाई दे रहा है, दिस इज द वर्कर विच इज़ बेसिकली रेडी टू इंजेक्ट द फिश। तो ये यहाँ पे उसको इंजेक्ट कर दे रहे, हार्मोनल इंजेक्शन यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रा पेरिटोनियल जाता है ये इंजेक्शन जो है वो दिया, और डोज जो है वो अकॉर्डिंग टू दी मेल और फीमेल चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम ओवरटेड की ही बात करें तो मेल के केस में इट इज़ 0.2 mg पर kg और फीमेल के केस में इट इज़ 0.3 mg पर kg, ठीक है।
और जब आप ये दे देते हैं उसके बाद क्या होगा, तो ईस्ट्रोस स्पॉनिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। ये फीमेल है, ये मेल के केस में बता रखा है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन द पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो है आपका, ब्रीडिंग टेक्स प्लेस विद इन द 4 to 6 आवर्स आफ्टर द सेकेंड इंजेक्शन। तो 2 बार आप इंजेक्ट करेंगे, 4 to 6 आवर के बाद यू विल सी ब्रीडिंग। द ब्रूड फिश जनरली बिगिन टू चेज ईच अदर एक्साइटेडली आफ्टर द इंजेक्शन, and this phenomena is called estrus. That is, this chasing can be basically when you see fish chasing each other after the injecting them, then you are sure the injection were basically you acting correctly. Yeah. So after that, what happens when basically fish are enclosed to each other, the abdomen and the caudal fin in case of the female intensely constrict and egg flow out like a jet. तो वो कंस्ट्रिक्ट होगा एब्डोमेन वाला एरिया और वहाँ से एग निकलेगा। और सेम टाइम पे मेल विल कम क्लोज टू द फीमेल एंड डिस्चार्ज मिल्क टू द फर्टिलाइज द एग। तो बेसिकली सेम ही टाइम पे ये दोनों अपने जो मीट्स हैं उनको रिलीज करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट। सो आफ्टर दैट हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, जो ब्रूडर हैं दे आर कैप्ट इन द डिफरेंट टैंक, क्योंकि आपको सिर्फ उसी टाइम के लिए वो चाहिए थे, फिर उनको फिर से सेपरेट कर देंगे। फीमेल जो है ब्रूडर फिश वो वेंट वहाँ पे जो क्रिएट हुआ है उसको स्टिच किया जाता है टू अवॉइड द रिलीज ऑफ द एग बिफोर स्ट्रिपिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स जो रिलीज ऑफ द एग है उसको अवॉइड करने के लिए द वेंट फ्रॉम वेयर द एग्स आर गोइंग टू बी रिलीज दैट आर स्टिच, right? And after 8 to 9 hours of the hormonal administration, when fish get excited, the stitches of the female brooders are removed and stripping out the egg will be done. तो stripping क्या है, egg को basically उसमें से release करना। और उसी सेम टाइम पे मेल ब्रूडर जो मिल्ट है ये बेसिकली वो चीज़ इसमें से सीमन्स जो हैं बेसिकली कलेक्ट किए जाएंगे। सो मिल्ट इज़ ऑल्सो स्ट्रिपिंग आउट ओवर द eggs. तो फीमेल जो हैं दे विल स्टार्ट स्पॉनिंग वेल बिफोर द मेल गेट्स एक्साइटेड, एंड एज द एग्स आर स्टिकी इन नेचर सो दे विल स्टिक टू द स्पॉनिंग टैंक्स वॉल एंड द सर्फेस, एंड दे डोंट गेट मिल्क टू फर्टिलाइज देम, दे बिकम यूजलेस। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले फीमेल में से एग निकाला जाएगा, फिर मेल जो है इट विल रिलीज द मिल्क और फिर जो है वो उसको फर्टिलाइज करेगा, राइट। और अगर फीमेल्स के गेमीट को टाइमली मेल गेमीट नहीं मिलता तो एग्स विल बिकम यूजलेस, ठीक है। ये पहले स्टिचिंग का दिखा रहे हैं, दिस इज द स्पॉन जो हमने बताया स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में होता क्या है, ड्राई मेथड से की जाती है, जिसमें कॉमन कार्प के लिए बड़ा कॉमन मेथड है ये ब्रीडिंग के टाइम पे। तो स्ट्रिपिंग जो है 8 से 9 आवर्स के बीच में की जाएगी आफ्टर द हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन। और इस मेथड में करते क्या है, बेसिकली एग फ्रॉम द फीमेल एंड मिल्क फ्रॉम द मेल इज स्ट्रिपिंग इन द टब बाय प्रेसिंग द बेली। तो यू प्रेस द बेली ऑफ द फिश और वहाँ से वो रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मिक्स किया जाएगा उसको कुछ सेकेंड्स के लिए, देन दे ऐड द मिल्क पाउडर इन द टब टू प्रिवेंट द अडेसिवनेस ऑफ द कॉमन कार्प्स एग। ऐसे मैंने बोला ना बहुत अडेसिव है, अगर वो वहाँ पे चिपक गए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप उसके लिए मिल्क पाउडर डालते हो और देन यू ऐड वाटर एंड देन द एग्स विल गेट फर्टिलाइज और फिर उनको वापस इंक्यूबेशन टैंक में डाल दिया जाएगा। इंक्यूबेशन टैंक में डालने के बाद जो है फर्टिलाइज एग है बेसिकली वाटर फर्टिलाइज्ड एंड द वाटर हार्डन्ड एग्स। तो बेसिकली एग जो है दे विल बिकम हार्ड, स्वेल हो जाते हैं, थोड़े पर्ल की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। डायमीटर ये है इनका और ट्रांसपेरेंट रहते हैं कलर में। जो डेड या अनफर्टिलाइज एग रहेंगे दे विल रिमेन ओपेक, दैट इज़ द डिफरेंस दैट यू नो, ठीक है। तो ब्रीडर्स को पता होता है कि भाई जहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर का एग मिलेगा और दूसरी जगह पे कौन सा होगा, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो ओपेक रहेगा, नेक्ड आई से देख के पता लग जाता है, ठीक है। तो जो ये ओपेक वाले हैं वो तो रप्चर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ईजिली इवन दूसरे वाले भी ईजिली रप्चर नहीं करते क्योंकि वो जो फर्टिलाइज है एग्स वो भी हार्डन हो चुके हैं, ठीक है। तो इंक्यूबेशन टैंक में जब उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो स्पॉइल नहीं होंगे ईजिली। उसके बाद कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, जो ये इंक्यूबेशन टैंक में डालना है उसको कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रखेंगे। देन व्हाट हैपन्स, देर आर चेंजेस इन द एग बेसिकली, ठीक है। सो देर आर फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ द इंड्यूस बेसिकली। हाँ एक और चीज़ है, क्योंकि आपने इंड्यूस करवाई है जो ओव्यूलेशन है तो उसकी वजह से देर आर सम चेंजेस, ठीक है। तो वो जो चेंजेस हैं वो आपको एग में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम एक बार उसको डाल देंगे इसमें इंक्यूबेशन टैंक में, हमें वहाँ से अब कंटिन्यू करना है, राइट।
तो फर्टिलाइजेशन जो है हो चुकी होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल जो स्पर्मेटोजोआ फीमेल का जो मेच्योर है वो आपस में फ्यूज़ हो गया और जाइगोट बन गया, ठीक है, दिस इज़ द फर्टिलाइजेशन। तो फिश में फर्टिलाइजेशन पीरियड जो है वो लिमिटेड रहता है, इसीलिए फ़िश के एग जो हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। जो फ़िश के एग हैं वो स्वेल होते हैं इमीडिएटली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि वाटर की वजह से भी एग हार्डन हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस द micropyle end from where basically the sperm nuclei is supposed to enter and fertilize, that will close up अगर वो ज़्यादा देर उसके कांटेक्ट में रहेंगे। तो कॉमन कार्प के लिए जो फर्टिलाइजेशन पीरियड है वो बहुत ही कम है, विद इन 45 to 60 सेकेंड द स्पर्म नीड्स टू कॉन्टैक्ट द एग, राइट। और अब बाकी फिशेज़ में इट इज़ लिमिटेड टू फ्यू मिनट्स, बट कॉमन कार्प के लिए बहुत छोटा है। तो इसीलिए पहले एग को रिलीज़ करा के फटाफट क्या किया जाता है, मिल्ट उस पर बेसिकली मिक्स किया जाता है, सो दैट द चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो स्पेशल प्रिकॉशन जो हैं वो लेना पड़ता है, तभी वो मिल्क पाउडर का भी यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये ड्राई मेथड जो है मैंने आपको ये बताया था। तो दोनों के सेक्सुअल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको स्ट्रिप किया जाएगा इनटू द ड्राई रिसेप्टर्स, मिक्स किया जाएगा बिफोर एडिंग ऑफ द वाटर। और वेट मेथड भी होता है, उस मेथड में आप क्या करोगे, ये सेक्सुअल प्रोडक्ट्स इट इज़ नथिंग बट एग एंड स्पर्म्स, दे आर स्ट्रिप्ड साइमल्टेनियसली इनटू द रिसेप्टर कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, बहुत कम का पानी है। और सुपर ड्राई मेथड भी होता है, इसमें एग को स्ट्रिप किया जाएगा इनटू द सीव टू एलिमिनेट द एग फ्लूइड ऑल्सो बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द ड्राई फर्टिलाइजेशन मेथड। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स विच आर अवेलेबल ओवर देयर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन रेट को भी आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो फर्टिलाइजेशन रेट क्या है, नंबर ऑफ द फर्टिलाइज एग इन द सैंपल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एग इन द सैंपल मल्टीप्लाई बाय द 100। इंक्यूबेशन जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो आप फर्टिलाइज एग उनको स्टॉक करने से पहले जो यूनिट है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, क्लीन करो अच्छे से, ठीक है, एंड देन यू एंड बेसिकली रिलीजेस। ये देखो ये यहाँ पे जो एग है उनको इंक्यूबेशन पूल में डाल रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद जो लार्वे हैं उसमें से हैच करेंगे अराउंड आफ्टर 16 to 20 आवर्स। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में जो लार्वा है वो यॉक को पूरा ऑब्जॉर्व कर लेगा और वहाँ से फ्राइज जो है निकलेंगे वहाँ से, ठीक है, द यंगर फिश बेसिकली। और इस टाइम में भी जो टेम्परेचर है, जो कंडीशंस हैं द इंक्यूबेशन टैंक का, दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, राइट। और ये जो ट्रेज हैं दे आर परफोरेटेड बॉटम एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ द मॉस्किटो नेटिंग ऑल्सो। जो ट्रेज हैं जहाँ से बेसिकली ये रखा गया है, जिसमें ये देखो फर्टिलाइजेशन एग्स जो है इंक्यूबेशन के लिए उसको स्टेगनेंट में डाला जाएगा, एंड देन रनिंग वाटर में भी डाल सकते हो। उसमें छोटे छोटे ट्रेज होते हैं जहाँ पे क्या है मॉस्किटो का नेट जो है उतनी परफोरेशन होती है। तो इंक्यूबेटर जो है दे आर फिल्ड विद क्लीन वाटर, ऑक्सीनेटेड वाटर होना चाहिए, प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए, नहीं तो वो तो एग को कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। फिर एग्स जो है उनको स्प्रेड किया जाएगा होमोजेनियसली, क्योंकि ना एग इकट्ठे हो जाते हैं, स्टिकी होते हैं, तो उनको पहले क्या किया जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा। एंड देन जो फर्टिलाइजेशन एग है वो फिर से पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से दे विल स्वेल अप, दे बिकम थिकर एंड दे स्टिक व्हेन इन कांटेक्ट विद द वाटर। तो ये जो स्टिकीनेस है बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, और उसके कुछ टाइम के बाद जो है वो जो एग जो है वो बेसिकली वहाँ पे हैच होगा। जो हैचिंग है वो और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, तो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा तो अच्छे से हैचिंग हो जाती है। और हैचिंग परसेंटेज भी वेरी करता है, ठीक है। तो 80 to 90% है जैसे यहाँ पे व्हेन स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ एग आर इंक्यूबेटेड, ठीक है। तो टोटल वहाँ से परसेंटेज जो है वो अलग हो सकता है, कई बार टाइम लगता है हैचिंग में, कई बार प्रॉपरली अच्छे से हो जाती है, ठीक है। हैचिंग रेट भी आप निकाल सकते हो। और उसके बाद जो है 3 days ओल्ड हैचिंग हैविंग एवरेज साइज ऑफ 4 to 5 mm आर नोन एज स्पॉन। तो ये अलग टर्म है। स्पॉन क्या है, जो निकला मैं फ्राई कह रही हूँ ना, तो यहाँ पे स्पॉन भी कहते हैं। स्पॉन आर द कलेक्शन फ्रॉम स्पॉन कलेक्शन टैंक बाय प्लेसिंग द हाफाइन टैंक। दैट मीन्स कि आपने क्या किया, यहाँ पे बताते हैं दिस, ये जो है वो कलेक्ट किया है स्पॉन को, ठीक है। तो स्पॉन होता क्या है, 3 days ओल्ड हैचिंग हैविंग एवरेज साइज ऑफ 4 to 5 mm। तो 4 से 5 mm वाला जो आपको साइज मिल रहा है दैट इज स्पॉन। स्पॉन जो है दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम द स्पॉन कलेक्शन टैंक बाय प्लेसिंग द हापा इन द टैंक। तो वो ट्रे रख के जो है वो ले रहे हैं, एंड कलेक्टेड जो स्पॉन है दे आर कलेक्टेड इधर स्टॉक इन द नर्सरी पॉन्ड और दे आर डायरेक्टली सोल्ड टू द सोल्ड द फिश। तो ये डायरेक्टली भी इनको सेल कर सकते हैं या फिर इनको टैंक में भी रख सकते हैं, ठीक है। इनका सर्वाइवल रेट भी जो निकालते हैं ये रहा, सर्वाइव्ड फ्राई इनको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है जी। हैचिंग के बाद द फ्राई डू नॉट टेक एनी एक्सटर्नल फूड विद इन 70 to 72 आवर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल फूड वो नहीं लेते, इस द टाइम पे दे आर जस्ट यूजिंग द यॉक
आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट फीडिंग. 96 आवर्स में हैचिंग नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और फिर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. So this is all about for carp culture today. I hope you understand something from the lecture. If you have any kind of question or query, feel free to comment it down. I have tried to give you information as much as I can from different chapters of book. So if you still have any question, you can comment it down. And if you understand something from the lecture, do like the video and share it with your friends who can be benefited from the lecture, and subscribe for more lectures. I will see you all in the coming video. Thank you.